Hello once again. Chapter 2.1. The question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. So what do you mean by polynomials in one variables? मैंने polynomials का definition आप लोगों को सबसे पहले बता रखा है. अब ये एक नया टर्म आ गया polynomials in one variables. मतलब वैसे polynomials जिसमें one variables हो, constant form जितने भी हो सकते हैं, constant term जितने हो, but जो variables terms होंगे वो one ही होंगे. जैसे कि 2x square plus 5 कितने variables terms है? plus 5x कितने वेरिएबल टर्म्स है? x ही यूज हो रहा है, एक ही वेरिएबल टर्म्स है, वो x स्क्वायर हो या x है, y नहीं है यहाँ पे, ना ही z है, ना ही t है, एक्सेट्रा कोई अदर वेरिएबल टर्म्स इसमें नहीं है. तो ये वेरिएबल्स इन वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स हो गया. इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स अगर लिखना हो तो 2x प्लस वाई स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस वाई, ये भी हम लिख सकते हैं. तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स. तो ये यहाँ पे ये पता करना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन है और वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन है. ये दोनों एक साथ मर्ज कर दिया गया है इसमें, और वो दोनों चीजों को उनको पता करना है और उसका रीजन भी बताना है. तो दोज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. So let's see question number 2. Y square plus root 2. Yeah, this is polynomial or not? The first two questions is, this is polynomials or not? Of course this is polynomials, because there is one variable polynomials of one variables. कितने variables इसमें है? एक variables है और एक constant term है. Y square है, फिर कोई x है, कोई z, इसमें तो कोई ना ही x है ना ही z है, कोई ना ही t है, कोई भी वेरिएबल टर्म्स इसमें यूज नहीं किया गया. वेरी करने वाला टर्म्स जो है ये ही है, और ये रूट 2. तो y स्क्वायर प्लस रूट 2 जो है, इसमें जो वेरिएबल्स है वो y है, और उसका जो उस पे जो पावर्स है वो क्या है? 2 है. तो ये 2 है वो क्या है? होल नंबर. तो इज इट पॉलिनोमियल और not? Yes, of course it is polynomials, because its power is of whole numbers. In this polynomials, in this algebraic expressions, the powers of variables is 2, that is also a whole number. So that we can say that this term is, this following expression is known as polynomial as well as in one variables. So this is polynomials in one variables. Question number 3. Question number 3 में है 3 under root t plus t root 2. In this following expressions, there are one variables. There are not two variables, only one variables, because only t is used in these expressions. Now the second question is it polynomials or not? At first we will try to simplify it. After simplifying, we get 3 into t to the power half plus t into root 2. Here variables of t is equal to half, and here variable of t is equal to 1. One power of one variables is half, and another terms of variables are one whole number powers. Half is not a whole number, so we can say that this is not a polynomials. This is one variable expression. You can say that this is a one variable following expressions. One variable का following algebraic expression तो ये है, but polynomials नहीं है. यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो polynomials भी होनी चाहिए और दूसरे जो है
जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो वन वेरिएबल्स होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन तो वन वेरिएबल्स है बिकॉज टी का ही यूज किया गया, कोई दूसरा वेरिएबल टर्म्स यूज नहीं किया गया है। बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि इसके वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स, सारे पावर्स जो है वो होल नंबर्स में होने चाहिए। एक जगह पे 1 है, दूसरे जगह पे हाफ है, तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि ये वन वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस तो है बट पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। सो this will not be a polynomials in one variables. And now question number 5. X to the power 10 y to the power plus y to the power q plus t to the power 50. At first we will try to know about is it polynomials or not. Of course it is polynomials because in this following expressions all terms of this expression is of powers of all variables in this following expression are of whole numbers. As for example, powers of x is 10, powers of second variable y is q 3, and powers of third variable is 50, that is also a whole number. So we can say that it is a polynomials but it is not a polynomials of one variables. इसमें कितने वेरिएबल्स, x भी वेरिएबल्स है, y भी वेरिएबल्स है और t भी वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मींस क्या, जो वेरी कर सकता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ये तीन टर्म्स यूज किए गए हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स इन वन होना चाहिए, वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल्स कितने वेरिएबल्स का है, ये पॉलिनोमियल्स तो है, दिस एक्सप्रेशन कैन बी ए पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल तो है बट इसमें जो एक्सप्रेशंस हैं, इस एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो वन वेरिएबल्स नहीं है, 3 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल्स x हो गया, दूसरा वेरिएबल्स y हो गया और तीसरा जो वेरिएबल्स है, थर्ड वेरिएबल्स वो t हो गया। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, दैट्स इट। I think all of you got it, and if you have any kind of problem please comment in the comment sections. Now I will start your question number 2. In the second questions, question number 2, write the coefficient of x square in each of the following. In the previous video I told you about coefficient. What is coefficient? Coefficient means multiplying of any constant term in any following expression, that is polynomial, multiply of constant term and variables, then constant term will be coefficient of variables. So here we have to write कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से ऐसे किस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हुआ इसमें। तो देखते हैं एक-एक करके। तो फर्स्ट में क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट इसमें केवल एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कौन सा कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है कि 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा। सेकेंड, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, कौन सा वेरिएबल टर्म्स कांस्टेंट टर्म है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो -1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। एंड थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, किस कांस्टेंट टर्म के साथ हुआ, π/2 इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म,
इसका वैल्यू पाई का क्या होता है 22/7 और 3.14 समथिंग। तो ये जो है कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल्स नहीं है, इसका जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। और सबसे इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे है भी नहीं इतना ज्यादा, वो फोर्थ है, वो क्या है √2x + -1। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर ऐसे रहता √2x यानी कि x जो होता रूट के अंदर होता तो वो अलग होता, और ये है √2 × x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे तो √2 हो गया, और यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट बताना भी नहीं है, बताना किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, एक्चुअली में x स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो x स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नो कोफिशिएंट। Third question is, give one example of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. At first, I want to clear again meaning of degree that I told you in earlier videos, previous video. Degree of any polynomial will be highest power of their variables. Now here I have to give an example of binomial of degree 35। मतलब binomial मीन्स दो टर्म होने चाहिए और उसके लिए उसका डिग्री कितना होना चाहिए 35, यानी कि उस बायोनोमियल यानी कि दो टर्म वाले फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 35। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके दिए जा सकते हैं, देखो कितने एग्जांपल्स हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गया x⁵ + 2, 2x⁵ + 5, 5x, 3x⁵ + 7x। ध्यान बस ये रहना चाहिए कि जो डिग्री है हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल्स का वो 35 होगा, और टर्म जो है वो 2 होगा। हाईएस्ट पावर 35 रहने से उस टर्म उस बायोनोमियल्स सबसे पहले तो टर्म 2 होना चाहिए, तो वो बायोनोमियल्स हो गया, और दूसरा ध्यान ये रखना है कि उसकी हाईएस्ट पावर्स जो होनी चाहिए वेरिएबल्स की वो 35 होनी चाहिए। जस्ट ये दो चीज रख करके आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। जस्ट लाइक इसी में एक और क्वेश्चन मर्ज है, वो है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल मींस जिसका वन टर्म हो ऑफ अ डिग्री 100, तो इसका एक ही x⁴ या 5x⁴ या फिर 10x⁴, मतलब कुछ भी कोफिशिएंट देकर के भी कर सकते हो, नहीं देकर के भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे इसके भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 का फर्स्ट ये है, मैंने पहले बताया था, I told you that what is degree? Degree is the highest power of any variables in the following any polynomials. That is degree. Here the first example is 5x³ + 4x² + 7x. In this following polynomials, highest power of these variables x is 3. It means x degree equal to 3. (5x³ + 4x² + 7x). In this following polynomials, highest power of the variables means is x³, that is 3. So degree equal to 3.
The second question is 4 minus y square. In this polynomial, the highest power of the variables is 2. So degree will be 2. And question number 3, 5t minus root 7. In this polynomials, highest power of the variables, that is t, is 1, t to the power 1. So degree equal to 1. And question number 4, only one term, that is 3. We can say that 3 equal to, we can write in the other form 3 equal to x to the power 0. In any numbers, I repeat again this thing, any numbers, either algebraic or quantitative numbers that has 0 as a power, value of this number will be 1. किसी भी वेरिएबल नंबर पे, कांस्टेंट नंबर पे अगर उसका पावर 0 दे दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो इसको 3 into 1 तो हम लिख सकते हैं 3 को, और 1 को x to the power 0 तो लिख सकते हैं. तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट पावर क्या हो गया x का, वेरिएबल का. तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, बट फिर भी हम वेरिएबल अगर बनाते हैं तो यहाँ हाईएस्ट पावर डिग्री का क्या हो गया, 0. और इतना करने की भी कोई जरूरत नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 तो है ही, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस लाइन, linear, quadratic and cubic polynomials. That I didn't tell you about this new terms. What is linear polynomials, quadratic polynomials and cubic polynomials? These are very simple. In linear polynomials, powers of variables will be 1. In quadratic polynomials, powers of highest power of polynomials will be 2, and in cubic polynomials, highest power of polynomials will be 3. In other words, you can say that the degree of, if the degree of polynomial will be 1, then it will be linear polynomial. If the degree of the polynomial will be 2, then it will be called quadratic polynomials, and if the degree of the polynomial will be 3, it will be called cubic polynomials. As for example, the first one is x square plus x. So here the power is x square. It will be quadratic. In this second, degree will be x cube. Degree is x cube. So it will be cubic polynomials. And in third, degree is highest power of the variables is a square, and 2, it will be quadratic polynomials. And in fourth, degree of polynomials is 1. It means it is a linear polynomials. And फिफ्थ नंबर क्या है, डिग्री इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल्स का 1 है, तो क्या होगा, सिंपली ये लीनियर हो जाएगा. ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा. ठीक है, तो यही डेफिनेशंस है. जब हाईएस्ट डिग्री उसका किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री सिंपल 1 है तो वो लीनियर हो गया, 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, और 3 है तो वो क्यूबिक हो गया.
इसी हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। सो बेसिकली दिस इज चैप्टर 2.1। मैं ये समझ रहा था कि जो पहले का वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जो कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 जो मैंने दिया है, वो सारी वीडियोस अगर आप देखें तो 2.1 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट आप लोगों का ये रिक्वेस्ट था तो मैंने ये पूरा कर दिया। और आज की क्लास में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए परेशानी भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।